બોલો ચાલો બોલાવો. જય સચ્ચિદાનંદ. અવાજ નહીં નો નો યાર. આ છોકરાઓ બોલાવે છે ત્રિમંત્ર બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ બોલાવો. નમો વિતરાગાય નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો લોય સૌવ સાહુણમ એસો પંચનમુક્તારો સૌ પાવપણાસનો મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ પડમં ભવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણી પાસે આજે લિમિટેડ ટાઈમ છે એટલે ફટાફટ પ્રશ્નો પૂછવા માંડજો. આઈ ડોન્ટ વેસ્ટ ટાઈમ. કૃપાને એક ક્વેશ્ચન હતો. હા એ યસ મને પૂછતી હતી કે બા પેલા યુગ હોય છે ને સતયુગ ને એ મેં કહું મને બહુ ખબર નથી તો એટલે તમને ક્વેશ્ચન તમે એને એક્સપ્લેન કરો. યુ રિમેમ્બર સતયુગ એન્ડ વી વર વોચિંગ Three yoga and height and everything. એને આગળ બોલાવી લે એટલે જો કસો કરાય ને. आ जाओ. वो आंटी के बाजू में बैठो उनको अच्छा लगे. आ जाओ. आंटी बोल रही है कि आज हिंदी में बात करो. नहीं कोई नहीं आप करो मैं समझ लूंगी. गुजराती आती है? गुजराती इससे थोड़ा बहुत सीख लिए. हाँ थोड़ा थोड़ा आवड़ता है. सारा दिन इसी के साथ रहते हैं. हाँ इसने हिंदी सीख ली हमने गुजराती. हाँ हाँ सारू. रे कसम रुमाल कसम के सपोर्ट नीचे के काम बुक नहीं बुक ના તો कड़क પેલું આ એ છે ને એટલે સોફ્ટ થઈ कड़क જાય. જોઈએ. ट्रे लई आए ने पहले हाँ ट्रे ऊंच के તો સોફ્ટ છે ને એટલે લોચા छोड़ी देंगे. લેના हाँ परफेक्ट. પાછો મૂકી પાછો ઊંધું મૂકી દો. ના ના એને એની જરૂર એને એને ઉપર મૂકવાની જરૂર નથી. અરે એને મૂકા મૂકો હવે મૂકી દો હવે મૂકો બસ આમ જ હવે એવું કરી લઈશ એ તો હું કરી લઈશ હવે. आ गया परफेक्ट है. ये आज का सत्संग है ना प्रश्न पूछने की जगह है. एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू फील फ्री. क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं. मुझे समझ में नहीं आया ऐसा भी बोल सकते हैं. हाँ નહીં હું એમ કરી દઉં નહીં પડે નહીં પડે ઊંધું કરો કઈ વાત રૂમાલ પાસે ના 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 નહીં પડે સોફ્ટ નહીં કડક કરવું પડે. કડક જ. ચૂકે નહીં. એ નહીં પડે. Close up. रूपा को कौन सा ग्रेड में आ गई स्टैंडर्ड में? 9th. तो इससे बड़ी हो गई. क्या बात है. और तू 6. आप लोग इतना बड़ा कैसे हो गए. हिंदी समझ में आती लिटिल बिट. टुडे यू विल लर्न हिंदी. ओके. કશું ચાલો વાત કરો તો ચાલો છે.
कृपा का प्रश्न था कि युग क्या होता है। ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बोलते हैं। युग इज ए टाइम साइकिल, cycle of time. So time, the era changes. So first Satyug, then Treta, then Dwapar, and then Kalyug. And there are two types of cycle. In one cycle, there are four parts: Satyug, Treta, Dwapar, and Kalyug. And in another cycle, there are 6 parts. It says, they say, Ara 1, 2 means part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, and part 6. So that the topmost, that cycle, the top part is like Satyug. Then it will go down, descend, 1, 2, 3, 4. And when the 6th part is there, it is the bottommost part. So the top part, there is so much, it is full of happiness. And the bottom part, full of sorrow. Then after touching the bottom part, again it will rise, ascend. 6, 5, 4, 3, 2, 1. But the number is 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's a mirror image. So in Satyug, there is a lot of happiness, but nobody can attain moksha. Nobody can attain liberation. In Satyug, nobody can attain liberation. Because they are all so happy, they never have a thought of mukti, of moksha, of liberation. If they are hungry, and then if they go and sit below that kalpurux, and some small fruit is there, and if you eat that small fruit, like of the size of a blueberry, then again he will not be hungry for 6 months. If they feel, oh, it's cold, then they will go and sit below that kalpurux tree, and they will get that balm, that શું કહેવાય, છાલને શું કહેવાય, ઝાડની છાલને પેલી, હા. So from that they will make that dress. So they are so simple, they don't have any problem, they don't have any tension, they don't have any worries. So they never think of liberation. But say for you, morning you wake up and immediately that thought will strike in your mind, you know, now I will have to wake up, now I will have to get ready, now I will get ready, prepare my school bag, I have to do breakfast, and I have to run to school. Then whole day you will run in the school, then again come back, then again. So whole day you are busy. And they are whole day, they are free. So they are full of happiness. So they don't need mukti, moksha. But in this descending era, in Kalyug, in 5th and 6th part, in 5th part, they say dukham. Sukham, dukham sukham means that more than 50% dukh, unhappiness, and less than 50% sukh. But in 6th part, it is dukham. So whole day they have some problem. It's so much warm, they can't bear it. So whole day they can't go out in that part, in the 6th era. So they have to live in the caves made near river bank, like that. So in Kali Yuga, people will think of, they will have desire for liberation, desire for moksha, desire for permanent happiness. So this is the natural cycle, and it changes
automatically. Nobody is changing it. These people, environment people, they shout, they go, we have to save the environment, otherwise it will change, it will be warmer, it will be this, it will be that. People can't live like that. But it's a natural cycle. And it changes by itself. So in this era, people will make more pap, sin. So day by day, the outer means of happiness will reduce. पहले इतनी ठंड गर्मी थी नहीं थी, अभी बढ़ रही है। तो अभी पहले एडमिंटन में आते तो किसी घर में एसी नहीं था, 20-25 साल पहले। आप कितने साल से हैं? From 2019. 2019, हाँ, तो मैं तो 2009 से आता हूँ, तो 2009 में तो नहीं थे। बाद में धीरे धीरे नए मकान में डालना पड़ा, बराबर है। इवन इन अफ्रीका, केन्या, कंपाला, युगांडा, किसी घर में फैन भी नहीं थी। मगर अभी इतनी गर्मी बढ़ गई तो सबको रखना पड़ता है, एसी भी रखना पड़ता है, फैन भी रखना पड़ता है। तो क्या है कि स्लोली ग्रेजुअली वो सब बढ़ता जाता है। पहले when you are happy, you will not hurt anybody. Simple thing. When you are happy within, when you are contented, you will not hurt anybody. Say, whatever you want to eat, you will get it. Whatever you want to wear, you get it. Then you will not think of snatching somebody else. Means you will not hurt anybody. Clear? So, that time in Satyug, in Dwapar, Jai Satyan. Oh, Jai Satyan. 这个不是一下，拿这个东西。 બોલો આપણે શુક્રવારે રાખીશું ગુજરાતીમાં જ્ઞાનવિધિ, તો ફ્રી રાખજો તમારા માટે, અને આ બીજા જેને કોઈ કહેવાનું જરા વાત કરી લે. સાંજે 6 વાગે, 5 વાગે, 5 હા. ગુજરાતીમાં શુક્રવારે છે, હિન્દીમાં ગુરુવારે છે, અને ઇંગ્લિશમાં આવતીકાલે છે. એ તો પૂછી લેજો ને બાબુ. મારા માટે તો ક્યાં તો એડમિન્ટન એવું જ છે ને, મારા માટે એવું ને ક્યાં તો એડમિન્ટન. સો યુ આર ક્લિયર? નાઉ નેક્स्ट. મારા પાસે ક્વેશ્ચન છે. તારી પાસે ક્વેશ્ચન છે? હા. So કે હમણાં આપણે ગોડને માને છે, દાદા ભગવાનને માને છે ને, તો કે ઈ કયા ગોડને માનતા હતા? કેમ કે ઈ દાદા ભગવાન થોડીને એમને સેલ્ફને માની શકે છે. શું કહે? દાદા ભગવાન કયા ભગવાનને માનતા હા. હતા? જાતે સેલ્ફ કેવી રીતે ભગવાન હા. બનાય? અને પોતાને ના માની શકે, પોતાને કેવી રીતે માની શકે? હા. પોતાને કેવી રીતે માને? સેલ્ફને કેવી રીતે માની શકે? એ બોલો સ્ટાઇલ યાર જુદી છે ને. હા, એકદમ ડિફરન્ટ છે. એટલું ખાસ બોલી. ગુડ. એટલે એના ગુજરાતી એક્શન તો બદલાઈ જાય છે. Yeah. સવારું ગયું તો મને પ્રશ્નમાં કહ્યું ને કે એટલે આદમી ગુજરાતીઓ કોઈ બોલે આદમી, તો મૂકો હાલો આ કઈ ભાષા બોલે છે? મૂકો આ ઇંગ્લિશ નથી, ગુજરાતી નથી. હવે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ પણ આદમી શબ્દ એને પછી એનો પ્રોસેસ ને હોય ને તો આપણે શું બોલે છે? જો you know, we think who is God, that Ram is God, Krishna is God, Shiva is God, Bhagwan Mahavir is God, like that we think. But God is not a person. God is the enlightened soul within a human body. So body is not God, but the pure soul, fully enlightened pure soul within that body is God. So when we say Ram, so Ram's body is not God, but in that body, in that physical body, the soul within, which is fully enlightened, is God.
in you also God is there, but at present that God is covered with coverings of mistakes. તારી ભૂલ થાય કે ના થાય? તને એની પર ગુસ્સો આવે કે ના આવે? અને તને એની મિસ્ટેક પણ દેખાય કે ના દેખાય? So when you find faults of other, there will be one covering on the God within you. So during the whole lifespan, that covering becomes thick, so thick that God's light, God's absolute knowledge light can't come out. But when that coverings are removed, so when your vision will get changed. So at present you are seeing faults of other people, correct? आप भी ऐसा करते हैं? किसी गलती नहीं देते हैं? हाँ, आप अच्छे हैं, एडमिटर में लोग अच्छे हैं। You don't look at someone's mistakes, you don't see her mistake also. She's all happy all the time. नहीं, बड़ा बहुत अच्छी बात है। So when we find faults of other people, there will be covering on the God within us. तो हम क्या करते हैं, सारी जिंदगी में दूसरों की भूल देखते हैं। आपके हस्बैंड की तो गलती नहीं दिखाई देती, वो अच्छे कि आप अच्छे? सारे अच्छे हैं। ओह सर, चला हम नहीं अच्छे, बुरा नहीं कुछ। नहीं, तो ये आपकी बात मुझे अच्छी लगी। पर मैं क्या बताऊं कि जब हम कोई हमारी गलती नहीं हो, कोई इंसल्ट करता है, हमारी गलती को तभी भी हर्ट करता है, तभी आप उनको निर्दोष कैसे देखते हैं? हम ऐसा काम नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं, आप नहीं करते। मैं बताती हूँ, अगर कोई उनको बताता भी है कि ये आपकी गलती है, कोई बात नहीं, हम आगे से करेक्ट कर लेंगे। हाँ ना, बड़ा ये परफेक्ट है, पॉजिटिविटी। वो परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि somebody cheat you, somebody insult you, somebody hurt you, उस समय आप उनको निर्दोष कौन सी चाबी से देखते हैं, वो पूछ रहा हूँ। मे बी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही होते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत होते हैं। हाँ, तो ये होता है कि हमें अच्छा नहीं लगता, बट वी इग्नोर दैट। हाँ, उससे अच्छा ये किसी को कहने से पीछे आप पीछे हट जाओ, ठीक है ना? कि पता है हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम खुद को चेंज कर सकते हैं, राइट? तो उसकी गलतियां बताने से अच्छा है कि अपने आप को, अगर वो नहीं समझते आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ, आप पीछे हट जाओ, उससे बेटर वो है किसी को गलत कहने से बेटर आप। है ना, बराबर। बट आपकी गलती जो किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया, मानो आपके घर में से ही किसी ने कर दिया, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, फिर चुप हो जाते हैं, शांत हो हाँ, वही बताओ, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है। तो मैं तो ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आंसर। तो मैंने सोचा विच मास्टर की यू आर यूजिंग दैट यू आर नॉट फाइंडिंग फॉल्ट ऑफ अदर पीपल। कुछ मास्टर की होनी चाहिए। कभी कभी क्या मेरा नेचर ऐसा है कि कोई कुछ भी करे मैं लेट गो करूँगा, ठीक है चलो वो करता रहे, मेरा नेचर है। हाँ नेचर है। मगर नेचर में क्या है कि टू सम लेवल you can digest. If it exceeds your bearing capacity, then it's not possible for you to bear it. तो कितना वेट ले सकती है, क्योंकि इंडिया जाने का है, तो you can carry I think handbag, but if your father will give you check-in bag and it is 23 kg, then you can't carry. Because your capacity it is okay, you can carry. Yeah. Nishta can't carry. You can carry 23 kg bag. Oh, you are strong. Now she can. Barabar. So everybody has per their bearing capacity, that digest is a different thing. But if I have not to bear it at all, then it has a value. कोई आपका कुछ भी अपमान करे, दुख दे, कुछ भी करे, आपको सहन करना नहीं पड़े, ऐसा कुछ होना चाहिए। आप सहन करते हो और आपकी सहन करने की शक्ति है, वहां तक सहन कर लेते, इट्स अ डिफरेंट थिंग।
और सहन करना, बेयर करना, बुरा मत करना, इट्स इगोइज्म, इट्स इगोइज्म। समझते हैं? क्योंकि हम जो बाहर जो इगोइज्म बोलते हैं ना वो अलग है, मगर भगवान की भाषा में अहंकार की वजह से हम सहन कर पाते। बिकॉज ऑफ इगोइज्म वी बेयर इट। ये पहले के समय में लड़कियों को क्या सिखाते थे कि आप शादी करके जाते हैं, शादी करने के बाद तो ससुराल में गए तो कोई आपको नंद आपको दुख देती है या जेठानी है वो कुछ बोलती है तो सामने बोलना मत, सहन कर लेना, ऐसा सब सिखाते थे। मेरे पापा कहते थे एक चुप सो सुख। हाँ, आप सहते जाओ ऐसा बताते। बट मगर क्या है, सहन करते हैं ना, वो धीरे धीरे वो स्प्रिंग दबती है, फिर थोड़ा ज्यादा हो गया तो स्प्रिंग उछलती है, रिएक्शन भी आता है ना, रिएक्शन आता है तो सब तोड़ देते हैं, आज तक का जो भी वो कमाया है वो सब गवा देते हैं। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे आपके पास चाबी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से कोई कुछ भी करे मगर आपको सहन नहीं करना पड़े, बेयर नहीं करना पड़े, मगर आपको सॉल्यूशन मिल जाए। भगवान की बात, जगत की भाषा बोलते हैं कि आप सहन कर लो, अब यू बेयर इट। और भगवान बोलते हैं सहन नहीं करने का, यू मस्ट हैव सम सॉल्यूशन। क्या ना सॉल्यूशन आना चाहिए। जैसे मानो किसी ने घर में आपका इंसल्ट कर दिया, ऐसे बता रहा हूँ कि आपके हस्बैंड ने, आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपको 2-3 बार ऐसा सुना दिया तो आपको अंदर चलेगा ना सब। तो फिर क्या होगा, कुकर में वो प्रेशर बढ़ता जाएगा, और कुकर में प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, सीटी बजेगी, बराबर। मगर सॉल्यूशन क्या है कि गैस ऑफ कर दो, दैट इज अ सॉल्यूशन। तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए आपकी पास जिसकी वजह से वो प्रेशर बढ़े ही नहीं। हम क्या करते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है तो हम सीटी को दबा के रखते हैं, तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, फिर बॉडी पे इफेक्ट होती है, बॉडी पे इफेक्ट होती है। और फिर तो कभी कभी वो कुकर फट जाएगा या तो उनका जो सेफ्टी वाला है वो चला जाएगा। तो जो लोग बीमार होते हैं ना, वो सप्रेस करके बीमार होते हैं। तो हमें हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या ना कि आपका फर्स्ट नेम क्या है? रितु। आप बोलिए। तो सॉल्यूशन अगर हमें लगता है वो सॉल्यूशन करेक्ट है, पर जो जिनके साथ प्रॉब्लम होता है उनको लगता है ये सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है, तो फिर कौन बताएगा कौन सॉल्यूशन? नहीं, खुद के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए, सामने वाले के लिए नहीं। Whatever the situation is there, for that situation you should have some solution. So by applying that solution, you can remain relaxed. But if you're suppressing, will one day spring? Not suppressing. એટલે मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आपको सप्रेस તારે એને દબાવવાનું નથી, એનું સોલ્યુશન લાવવાનું। સોલ્યુશન એટલે આ ગેસને ઓલવી નાખ્યો ને એ સોલ્યુશન, પ્રેશરને ડિફ્યુઝ કરી નાખ્યું। પણ એ ટાઈમે મારી માટે કરેક્ટ છે, પણ પછી સામેવાળાને કરેક્ટ ના લાગ્યું તો આઈ એમ હર્ટિંગ હિમ। ના એવું નથી। सामने वाले ने आपके साथ कोई भी व्यवहार किया और आपको if it is hurting you, that means you need solution. आई नीड सॉल्यूशन। तो आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या है, अभी मानो सामने वाले को हर्ट होता है तो सामने वाले को सॉल्यूशन होना चाहिए, बट आपको मोक्ष में जाना है, आपको मुक्ति चाहिए, तो आपके ख्याल में होना चाहिए कि एज फार एज somebody is hurt by me, it's a red signal for me to enter મોક્ષ। એટલે પછી ત્યાં તારે માફી માંગી ધોઈને બધું ચોખ્ખું કરવું પડે। એટલે આગળ જગ્યા કરજો થોડી।
तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि ये आपका एक डेवलपमेंट पीछे का लेके आए हैं, तो इसकी वजह से कोई आपको हर्ट करे, आपको दुख दे, आपका इंसल्ट करे, आपको चीटिंग करे, आपका पैसा वापस नहीं किया, तो आप क्या है, टू सम एक्सटेंट यू विल लेट गो कि चलो कोई बात नहीं। आप प्रकृति क्या है, अपनी आपकी प्रकृति है, वो अच्छी है वो प्रकृति। वह एक समझने के लिए कि मानो भगवान है, तो उनका प्रसाद आधार है। हाँ चलो ठीक है, એને કોઈ પ્રશ્ન પહોંચાય કે ભગવાન પાછા આવશે છે तो मानो कि भगवान है, भगवान राम से भगवान राम इज देयर, और कोई भी भगवान है, तो भगवान को भी सब संजोग तो आते हैं। भगवान राम तो उनको भी 14 साल वनवास में जाना पड़ा था, और आप देखना कि भगवान राम ने कभी किसी को दोषी देखा था? नहीं देखा। ऐसे समझे, भगवान रामे कोઈને દોષી જોયા હતા? આખા જીવન દરમિયાન ક્યારે કોઈને દોષી જોયા નતા। मीन्स उनको कोई कुछ भी करे मगर किसी की गलती दिखाई नहीं देती थी। उनकी दृष्टि ऐसी निर्दोष हो गई थी कि सारा जगत भगवान राम को निर्दोष ही दिखाई देता था, और इसलिए उनको भगवान बोलते। और आपकी भी दृष्टि ऐसी हो जाए कि कोई कुछ भी करे, आपको सबको सब लोग निर्दोष दिखाई दे, तो आपके भीतर के राम भी प्रकट हो जाएंगे। सिंपल है। कब होंगे? अच्छा अच्छा, पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, हाँ मुझे करना है, करना है नहीं, ये तो है तो पक्की है। कहाँ से है आप? पंजाब में कहाँ से? जलंधर। मैं जलंधर भी जाता हूँ, जलंधर जाता हूँ, पतियाला, चंडीगढ़, अम्बाला, समाना, रोपड़ सत्संग के लिए। बस जलंधर में भैया आपके से इतने डेवलपमेंट वाले लोग नहीं थे, आपका कैसे आ गया डेवलपमेंट? नहीं अच्छा है, मगर आपने जो बताया ना कि भगवान को प्रकट करना है, कितनी अच्छी बात है। तो भीतर के राम को प्रकट करना है तो ऐसी दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए कि जिससे आपको जगत में कोई भी जीव कुछ भी करे, एनी पर्सन डूइंग एनीथिंग, वेदर हर्टिंग यू और हेल्पिंग यू, एक्सट्रीमली हर्टिंग यू, इंसल्टिंग यू, फिर भी आपको उनका दोष नहीं दिखाई दे, ऐसा होना पड़ेगा। तो ये भगवान राम कैसे थे? ऐसे इमेजिनरी एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भगवान राम का कोई अपमान करे तो भगवान राम को कैसा रहे? ग्रॉस लेवल पे बता रहा हूं, ग्रॉस लेवल पे। तो मानो किसने भगवान राम का अपमान किया, इंसल्ट किया, तो भगवान राम को क्या रहेगा कि द पर्सन हु इज इंसल्टिंग मी, इन रियलिटी he is relieving me from my past heavy karma. Correct? You know principle of karma. And not only that person is relieving me from past heavy karma, but he is spoiling his own new karma and relieving me. That means he is insulting me, but in God says he is obliging me. So I must be grateful to that person. तो ऐसी दृष्टि रखते हैं तो क्या होता है, फिर कोई भी कुछ भी करे उनकी गलती नहीं दिखाई देती है। और भगवान का नियम क्या है? गॉड इज नॉट योर बॉस। हम सब मानते हैं भगवान है, भगवान ऊपरी है, भगवान ऊपर है, भगवान सब चला रहे, भगवान सब देख रहे। हाँ हाँ, कर्म सारा बॉस है, कर्म भी बॉस नहीं है। मैं आपको बताऊं, गॉड भगवान जो है वो तो आपका स्वरूप ही है, बट हु इज योर बॉस? योर मिस्टेक्स एंड योर ब्लंडर्स आर योर बॉस। समझ में?
आप ड्राइव कर रहे हैं, 100 की लिमिट है, आप 120 पे गए तो फिर वो टिकट आएगी नहीं। क्यों? तो कि आपने मिस्टेक की, इसलिए गलती की, इसलिए आती है। और ऐसा दूसरी कुछ गलती की तो पुलिस भी घर पे आ जाएगा। या तो आप सब कलीग के साथ भी कुछ गलती करेंगे तो भी आपको कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी होगा ना, सामने रिएक्शन तो आएगा। तो योर मिस्टेक्स एंड योर ब्लंडर्स आर योर बॉस। मिस्टेक्स किसको बोलते हैं? छोटी छोटी गलती होती है ना, किसी को अपमान किया, किसी को चांटा मार दिया, वो छोटी छोटी गलती है। और ब्लंडर मीन्स बिग, उनको बड़ी गलती बोलते हैं। तो बड़ी गलती टूट गई और मिस्टेक तो फिर निकलती आती है। तो बड़ी गलती क्या होगी? हाँ बोलो बोलो। ब्लंडर, ब्लंडर किसको बोलेंगे? हेल्पलाइन खुल ली है, कहाँ गई वो? कृष्णा कहाँ गई? हाँ हेल्पलाइन खुली है। आपको किसी को नहीं पहचान तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब एक फैमिली मेंबर जैसे है। मामी ब्लंडर्स कोने कहेवाय? बोलो दीदी ने આપણે પાસ કોઈનો અપમાન કરે, કોઈનો અપમાન કરે તો મિસ્ટેક કહેવાય। किसी को मार दिया आपने, किसी को नहीं, किसी का खून कर दिया वो भी मिस्टेक है। किसी का दिल दुखा, हाँ एक ब्लंडर, हाँ साची। ये क्या है? योर बिलीव दैट आई एम रितु इज द ब्लंडर। क्यों? क्योंकि रितु तो आपका नाम है। आपको ये व्यवहार चलाने के लिए सिर्फ नाम दिया गया है तो आपने मान लिया। तो बचपन में आपका नाम दिया रितु रितु रितु, तो सब बोलते हैं रितु रितु, तो आपको अंदर रजिस्टर हो जाता है, एक बिलीफ खड़ी हो जाती है कि मैं खुद रितु हूँ, मैं खुद रितु हूँ। मैं है वो ब्लंडर। हाँ, तो मैं उनकी जगह, उनकी सही जगह से उठकर गलत जगह पे बैठ जाता है। वो तो क्या है, नाम रितु दिया ऐसे रितु हो जाएंगे, नीतू दे दे नीतू हो जाते थे क्या में। तो एक बिलीफ क्रिएट हो जाती है, क्रिएट की खड़ी की हुई मान्यता। मारो हिंदी सुधरी है सर धीरे धीरे। हिंदी बोलने की प्रैक्टिस छूटी जाए ना, साल हो कोई बेगा था हिंदी में। तो भगवान ने क्या बताया कि द स्टॉन्च बिलीव विद इन यू। स्टॉन्च क्यों बोलता हूं? बिकॉज यू विल नेवर हैव डाउट दैट आई एम आई रितु। ऐसा कभी डाउट खड़ा होता है? समझो मेरी बात? आयु से समझो। ताई बात नहीं करतो, एमनी बात करूं कि एमने क्यारे हूँ रितु છે पर शंका उभी થાય? अरे कच्ची नींद में से उठाए ना आप, ऐसा हो जाएंगे कि अभी मैं कहाँ हूँ, क्या क्या है, मगर कभी भूलेंगे नहीं कि मैं रितु हूँ। तो क्या आपकी पक्की श्रद्धा में बैठा हुआ है कि मैं रितु हूँ? तो सही में रितु तो आपका दिया हुआ नाम है, आप रितु है ही नहीं। अरे क्या बात करते हैं? ये तो नाश वाला सड़ जाएगा या नीचे दफनाया जाएगा। हाँ हाँ, इसे दफनाया जाएगा, बराबर। नहीं अच्छा बोलते हैं, नहीं बात तो सही है, मगर मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप सोल बोलेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, सोल बोलने से नहीं चलेगा। नए नए को आगे ले लो। हाँ તમે જ્યાંથી નીચે બેસાય બેસી જજો, ખાલી સેન્ડલ કરવા પડે। સેન્ડલ કરીને બેસો તો કહીને બેસો તો વાંધો નહીં। ના બહુ મને ભરેલું લાગે ને, મને હવું લાગે ને, મને લાગે જરા કી છે ખાલી કરી। બધા તારા ઓફિસ વાળા ये मेरे बॉस है। बॉस है आपके?
बॉस जैसे लगते नहीं है। नहीं है, ये सारे ऑफिस उनको देख करके बुलाते हैं। आपके भी बॉस है? हाँ। चलो अच्छा, तो सरल है बॉस से बस। ये बॉस के बॉस और बॉस को मानना चाहिए मेरे बॉस है। ये बॉस के बॉस है। तो मैं रितु से बात करता था, मगर अभी फिर से शुरू नहीं करता हूँ, अब बीच में से ज्वाइन हो जाना। आगे कुछ समझ में नहीं आया तो उनको पूछ लेना, वो तो आपका सबॉर्डिनेट, आपकी सबॉर्डिनेट है तो पूछ लेना। हाँ, आपका राइट है उनको पूछने का। पर अच्छी है, मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। ऐसा एक डेवलपमेंट लेके अच्छी है। आप अच्छे हो इसलिए मैं आपको अच्छी लगती अच्छा ऐसा है, बस सबको मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। सभी को अच्छा लगता है, तभी आ गया। ये बात ऐसी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम आपने जो बताया ना, मैं आत्मा हूं, आप सब में आत्मा देखेंगे तो आप मुक्त है, और आप देखेंगे कि ये मेरी देरानी है, मेरी सास है, मेरी मदर है, मेरी बहू है। तो ऐसा देखें भाई मेरी बहू है तो क्या होगा, फिर भगवान बोलेंगे कि आपको सास होने का शौक है ना, तो कोई बात नहीं, दूसरा हम फिर आपको बहू कर देंगे। ऐसे वो जीवन भर का चक्कर चलता रहता है, समझे? तो लाइटली बात करो, समझो ના મારી સામે જોતી રહી તો મને શું થયું? તમે બોલો છો તો તમારી સામે જોડવી ને. ના 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 તો જોતી તો મને લાગે કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ શું समझ में? किसी को, ये तो बहुत अच्छे है, सरल है, किसी को बॉस होने का शौक है ना, तो फिर बॉस होके डीलिंग करते हैं ना सबके साथ, तो फिर भगवान बोलते हैं ठीक है चलो एक जन उनको अभी सबऑर्डिनेट बना दो, तो फिर उनका प्रमोशन नहीं आता है, उनके साथ वाले का प्रमोशन आ जाता है, वो वहीं वही के वही रहते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो भी संजोग आपको मिला उसी पे रहो, मगर एक दृष्टि के साथ। तो आपने जो बताया कि मैं सोल हूं, बात सही है, मगर सोल होके मैं सोल हूं बोलते हैं तो काम हो जाता है, और बिलीफ है कि मैं ऋतु, मतलब स्टॉन्च बिलीफ है, आपको शंका भी खड़ी नहीं होगी, और बिलीफ है कि मैं ऋतु हूं और आप बोलेंगे मैं सोल हूं, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो पोपट भी राम राम बोलता है, तो क्या पोपट की मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। तो ये सिंपल भाषा में बात करता हूं कि मैं ऋतु हूं, इट्स अ रॉन्ग बिलीफ। ख्याल में? क्या आपका शुभ नाम बताएं? हनु। तो ये नाम आपको दिया गया, तो फिर धीरे धीरे भीतर बिलीफ, मान्यता खड़ी हो जाती है ना, मान्यता खड़ी हो जाती है। जो भी नाम दिया गया वो आपके भीतर, वो नाम के हिसाब से वो मान्यता खड़ी हो जाएगी, मैं ये हूँ। सबको पता है कि मैं ऋतु हूँ, बचपन में सब पुकारा ऋतु ऋतु ऋतु, उनको पक्का हो जाएगा मैं ऋतु हूँ। तो कोई ऋतु बोले तुरंत देखेंगे, छोटा बच्चा है तो भी देखेगा मुझे बुला रहा है। और बड़े होने के बाद मानो कहीं जा रहे हैं और आगे कोई दूसरे 2-4 लेडीज जा रही है, कोई ऋतु की बात कर रही है, कोई दूसरी और ऋतु की बात कर रही है, फिर भी वो अलर्ट हो जाएगा, मेरी बात कर रही है। तो हम बोलते हैं कि मैं सोल हूँ, मतलब बिलीफ में क्या है? ऋतु। तो ये बिलीफ बदल जाए, ये रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर हो जाए, और आप सही में जो है वो सेट हो जाए, तो आपका काम हो गया। समझ में? बराबर? हाँ। आपको भी ख्याल में आ गया? हाँ जी। आप तो बॉस से जल्दी ख्याल में आएगा। नहीं समझ आया। हाँ, बॉस को जल्दी समझ में आता है। हाँ ही बोलने का क्या है? नहीं होता। हाँ नहीं बोलती। देखो रखने का, बॉस को जल्दी समझ में, भीतर रखने का कि वो बॉस है,
पास मेरा बॉस ऐसा भी ऐसा रखने का तेरा काम हो जाता है। पास को क्या वो समझ क्या है, ये मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं ना, ऐसा यहाँ भी डिवीजन करते रहने का, बोलने का भी और इधर डिवीजन करने का। तो आपने जो बताया बहुत अच्छा बता कि हम उसमें शोर हूँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर अभी आपकी बिलीफ में तो ऐसा है कि मैं ऋतु, तो मैं ऋतु हूँ, और उनको बोलते दादा भगवान ने बताया कि सब फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ, सबसे पहली अज्ञान मान्यता, क्योंकि आप है ही नहीं पर आपने मान लिया, तो सबसे पहली वो अज्ञान मान्यता कि मैं ऋतु। अब ये अज्ञान मान्यता है तो दूसरी बहुत सारी रॉन्ग बिलीफ, अज्ञान मान्यताएं आपको चिपक जाएगी। जैसे मैं इतनी उम्र की हूँ, मैं जलंधर की हूँ, मैं पंजाब की हूँ, मैं इंडिया की हूँ, फिर मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ, इनकी चाची हूँ, इसकी मामी हूँ, इसकी पत्नी हूँ, इसकी माँ हूँ, इसकी फ्रेंड हूँ, कितनी सारी चिपक जाती है ना। मगर दूसरी सारी रॉन्ग बिलीफ कब चिपकेगी? ये फर्स्ट फंडामेंटल रॉन्ग बिलीफ है तब कि मैं ऋतु हूँ, वो है तो सभी चिपकेगी। तो भगवान ने कितना बताया कि आपको मुक्ति चाहिए तो मेहनत करने की जरूरत नहीं, मुक्ति पाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये एक ही रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर हो जाए आपकी मुक्ति हो जाएगी। बराबर है, समझ में आ गया? चलो अच्छा है। कहाँ गई कृष्णा? तेरी फ्रेंड तो अच्छी है। नहीं मैं नहीं हाँ। मेरा पूरा स्टाफ ऐसा ही है। हाँ हाँ, तेरे सिवा, हाँ ये बात सही है, मेरे सिवा। ये अच्छी है इसलिए आप सब अच्छे मिलके नहीं। सही है। ये है तो हम भी आप ही हैं। हाँ हाँ ना, बराबर। ऐसा संजोग मिलता है ना, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। हम जनरली बाहर जाते हैं ना, सत्संग में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, संगत में जाते हैं, तो सब बातें हो गई, मगर ऐसे हम प्रश्न भी नहीं कर सकते और ऐसे इन प्रिंसिपल बातें नहीं होती। तो आपको सिर्फ इतना ही करने का है, ये मेन फंडामेंटल रॉन्ग बिलीफ को फ्रैक्चर कर दिया तो बाकी काम हो गया। बट वो कैसे करें? कैसे? पता नहीं, अब नाम तो है ही, अब नाम के बिना कैसे, नाम को हम कैसे बोल सकते हैं कि नहीं है? हाँ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। और बोलना भी नहीं ऐसा। हाँ बोलना भी, हाँ, आप बोला भी नहीं जाता हाँ। है। तो किस तरह से हम उसको बोल सकते हैं? हमने किसी के लिए थोड़ी ना, हमने अपने लिए करना है ये। That's what I'm नहीं नहीं asking, नहीं, मैं कि किस बता तरह से कर वो सकते क्या है, बाहर किसी को बोलने का नहीं। हैं? हाँ जी। इनको मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो उनको है कि मैं रीतू हूँ, जो बिलीफ है ना, बिलीफ फ्रैक्चर करने का, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलने में। अपनी सोच में ये रखना कि मैं हाँ, नहीं हूँ। बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बात तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि व्यवहार है, व्यवहार में बोलना तो पड़ेगा ना कि मेरा नाम रीतू है, नहीं बोलना पड़ेगा। मगर रहते हुए व्यवहार से बोलने का है, उनको हम सही मान लेते हैं। सिंपल भाषा बताऊं, जो टेम्पररी है उनको हम परमानेंट मान लेते हैं। इतनी गलती है। मीराबन, गलती कितनी है, जो टेम्पररी है उनको परमानेंट मानते हैं और परमानेंट को जानते नहीं। ગુજરાતીમાં કહો તો વ્યવહાર છે એને નિશ્ચય માને છે, નિશ્ચયને જાણતા નથી। ये टेम्पररी नहीं है, मगर हम जीवन जीते उनको परमानेंट मानकर जीवन जीते हैं। बराबर। मैं तो क्या बता रहा हूँ, ऐसे लाइटली बता रहा हूँ कि आपका जन्म हुआ, आपकी जो सारी इतनी उम्र गई, वो सारी उम्र आप किसके लिए जिए? कभी अपनों के लिए, कभी अपने लिए। हाँ बराबर, अपनों के लिए किया, अपने लिए।
मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपने जो भी जीवन जिया सारा ऋतु के लिए जी रहे हैं, ऋतु के लिए, ऋतु के रिश्तेदारों के लिए, बराबर। और सही में तो आप ऋतु है ही नहीं, इसलिए उनको ब्लंडर बताया। भगवान ने क्या बताया कि खुद के लिए जीने का है, तो खुद के लिए तो एक दिन भी जिया नहीं आपने, तो गलती नहीं हो गई बहुत बड़ी। और दूसरा क्या है, आए बच्चे उनके दूर ना रहे सुन मन को चाह लागे એનો કલર બદલાઈ ગયો, વેચ્યું હતું, ગરમ થાય કલર બદલાઈ નહીં. तो टेम्पररी वाली बात समझेंगे क्या ना, आपको समझ में टेम्पररी परम की बात समझ में आ गई? अनुजी आइडेंटिफिकेशन, अनुजी नाम के आइडेंटिफिकेशन के लिए वो तो टेम्पररी आइडेंटिटी और अनु के हनु क्या नाम है? हनु हनु पूरा नाम अनुराधा। अनुराधा 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 होता है ना, आज तक मैंने अनुराधा सुना है, अनुराधा फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। चलो अच्छा हुआ ना, कनाडा में आते हैं नया नया सुनने को मिलता है। ज्ञान बुरा मैं क्या बता रहा हूँ कि ये अनुराधा है इज टेम्पररी, उनका लाइफ स्पान है, उनका जो आयुष्य कर्म लेके आए इतना, बराबर है। और जो परमानेंट है उनको आप जानते नहीं है, तो आप सारा जीवन जो मेहनत करते हैं, आपने पढ़ाई की, जॉब किया, बिजनेस किया, कि जो कुछ भी शादी की, वो सब कुछ आपने अनुराधा के लिए किया, हनु के लिए किया। और आपके खुद के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अभी तक तो कुछ नहीं किया। मैं आपको बता, आपने भक्ति भी की, वो हनु के लिए की। आप मंदिर में गए, गुरुद्वारा में गए, संगत में गए, कुछ भी किया, वो सब हनु के लिए, और खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। नानक साहब ऐसा नहीं थे, नानक साहब ऐसा नहीं थे। उन्होंने तो जो ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण बताए सुखमणि जी के पाठ में, कितने सुंदर बताए, वो ऐसे नहीं थे। आपकी समझ अच्छी है, पर काम क्यों नहीं किया? करेंगे नहीं। मैं आपको निराश करना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको जागृत करने के लिए बता रहा हूँ कि आप इंडिया छोड़ के कनाडा तक आए, इतना मेहनत करते, इतना पैसा कमाते, इतनी ठंड में इतनी मेहनत करते, और सब कुछ दूसरे के लिए करते, जो आप नहीं है उनके लिए करते हैं, और आप खुद जो है उनके लिए कुछ भी नहीं किया। ये दूसरे लोग आपके सबॉर्डिनेट गलती करते हैं ना व्यवहार में, तो भी आप उनको डांटते हैं, और खुद इतनी बड़ी गलती करते हो, आप अलर्ट भी नहीं है, आपको पता भी नहीं चलता है। सोते रहते हाँ, सोते रहते। मैं आपको ये बात जो कर रहा हूँ ना, आपको जागृत करने के लिए, अलर्ट करने के लिए, बस समझते जैसा है। हम आफ्टर ऑल हम हिंदुस्तानी है, सनातन धर्म में मानने वाले हैं, बराबर, सनातन धर्म मानते हैं, तो अपना हम कोई भी धर्म करते हैं, मगर सनातन धर्म में तो आ गया ना। हम वैष्णव है कि शैव है कि आप ये कोई पंजाबी हिंदू है कि कोई ये सिख है, कोई जैन है, कोई योगा का करता है, कोई गीता में मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते, कोई माता जी को मानते, पर आफ्टर ऑल आए किस में? सबका समावेश तो सनातन धर्म में हुआ। तो अल्टीमेटली हमारी भावना है सनातन धर्म को फॉलो करने की, बराबर। तो सनातन धर्म का मीनिंग ही है कि सनातन की प्राप्ति करने का मार्ग। सनातन मीन्स परमानेंट, सोल इज परमानेंट, सोल की प्राप्ति करने का मार्ग उनको सनातन
धर्म बोलते थे। समझ में? तो बात नहीं है, बस समझ नहीं इसी। तो आप जो पूछे ना ये सोल की वो प्राप्ति कैसे करनी, तो जब ये रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर होती है तभी प्राप्ति होती है। तो ये जो दादा भगवान हो गए, दादा का नाम था A.M. पटेल, अंबालाल मुलजी भाई पटेल, and he was born in 1908 in Gujarat. And in 1958, at the age of 50, when he was traveling from Songar to Baroda, so at that time one has to change train at Surat railway station. There was no direct train, और रोड्स इतने अच्छे थे नहीं। तो 1958 में सूरत के रेलवे स्टेशन पे दूसरी ट्रेन के लिए बैठे थे 3 नंबर के प्लेटफॉर्म पे, और शाम का समय था। उस समय बट नेचर मीन्स विदाउट एनी एफर्ट्स, कुदरती वो भीतर जो भगवान है उसके ऊपर से सारे आवरण हट गए। तो गॉड विद इन, द प्योर सोल विद इन फुल्ली अनवेल्ड। और ऐसा हुआ तो क्या हुआ, उनको एक ज्ञान प्रकाश में सब कुछ दिखाई दिया कि मैं खुद कौन हूँ, ये ब्रह्मांड क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मुक्ति क्या है। एंड फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, उसी समय से उनका देह और आत्मा दोनों सेपरेट हो गए, और वो निरंतर अपने आत्म स्वरूप में रहते थे। ख्याल में? तो नाम था एम पटेल, तो एम पटेल 7वें थे, मगर वो रहते थे अपने आत्म स्वरूप में, प्योर सोल स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसी उनकी दशा हो गई। तो क्या हुआ, उनकी रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर हो गई, और जो राइट है वो सेट हो गया, और ऐसे सारी जिंदगी उसकी उसमें ही फिर निकल गई। फिर एक समय के लिए भी एम पटेल के साथ एक होके नहीं रहे, अलग ही रहे। समझ में? तो आप जब हनु होके रहती है तो क्या हो जाता है, हनु इज टेम्पररी। हनु के ऑल द सिचुएशन, ऑल द सर्कमस्टेंसेस, like with a belief that I am Hanu, then all this temporary happiness and unhappiness will affect you because of your belief. And when this right belief, this wrong belief is fractured, and you have the right thing set, then what will happen? This temporary thing will not affect you, and you will remain in your permanent state of being. ऐसा है। तो पूछते जाए, अनुभव करना है नहीं आपको। गृहस्थी में रह के थोड़ा टफ है, लेकिन कर सकते हैं, जरूर करना भी चाहिए। नहीं, गृहस्थी में रह के ही करना चाहिए। गृहस्थी में रह के टफ है ऐसा नहीं, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन है, इससे टेस्ट एग्जामिनेशन। आपको अनुभव हुआ, उनका टेस्टिंग कहाँ करेंगे? हिमालय में जाके बैठ जाएंगे तो टेस्टिंग कहाँ करेंगे? घर में रहेंगे ना, तो सास कुछ बोलेगी, हस्बैंड कुछ बोलेगा, बेटा कुछ बोलेगा, बहू कुछ बोलेगी, दिराई कुछ बोलेगी, जेठानी कुछ बोल के जाएगी ना, तो उनका टेस्टिंग होगा कि आप ऋतु में रहते हैं कि सोल में रहते हैं। उनका टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो गृहस्थ में होकर ही होना, गृहस्थ में रहकर ही होना चाहिए। तो वो तो मन में से निकाल देना कि गृहस्थ जीवन में नहीं हो सकता है। हिमालय में जाके तो किसी को नहीं हुआ है। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ हिमालय में जाने वाले का, बट वो भी तो वहाँ जाके बोझ बन जाते हैं। खाना उनको वहाँ पे भी चाहिए, रहने को भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो घर में सबसे बेटर है। ऋतु जी सब कुछ छोड़ के, मैं क्या बताऊँ, सारा संसार छोड़ के जाएंगे, हिमालय में जाके बैठ जाएंगे, वहां जाके ठंड में रहेंगे, मगर सब कुछ त्याग कर दिया, मगर ये मन वचन का त्याग कैसे करेंगे? और भगवान ने त्याग करने का नहीं बोला है, भगवान ने वस्तुओं का त्याग करने का बोला है। भगवान ने ऐसा बोला है कि हस्बैंड का त्याग कर दो, फैमिली का त्याग कर दो, पैसे का त्याग कर दो, जॉब का त्याग कर दो, तो नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं बोला है। वस्तुएं तो बहुत सारी है, कितनी चीज का त्याग करेंगे?
भगवान ने तो सिर्फ इतना ही बोला है कि आपको अहंकार और ममता का त्याग करने का है। ओनली 2 थिंग्स, अहंकार और ममता। मगर मैं जब बोलूंगा कि अहंकार और ममता का त्याग करने का है, देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। आप अपनी अपनी भाषा में अहंकार समझ जाएंगे, इगोइज्म समझ जाएंगे, अपनी भाषा में ममता समझ जाएंगे। व्हाट इज इगोइज्म? चलो आप मुझे प्रश्न करें, मैं आपको कर रहा हूं। हाउ यू विल डिफाइन इगोइज्म? अहंकार किसको बोलते हैं? When you have me in yourself, right? हाँ वो बराबर है, मैं ऐसे एग्जाम्पल दो ना। जब मैं कोई काम कर सकती हूँ या मैं CPA, मैं बॉस हूँ। हाँ मैं बॉस हूँ। जब मैं आ जाता है तो हाँ। that is तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अब मैं नहीं बोले तो क्या अहंकार निकल गया? हम तो क्या जो इंटेलिजेंट है ना, शब्द में नहीं बोलेंगे। मानो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनका कोई प्रेसिडेंट है, अपना तो इंडियन कम्युनिटी का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनका प्रेसिडेंट है, तो फिर ईयरली जो जनरल बॉडी मीटिंग में क्या बोलेगा? सब बताएगा ना, सब रिपोर्ट देगा कि हमने ऐसा 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 काम किया। फिर साथ में बोलेगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब ऊपर वाले ने करवाया। मगर भीतर उनकी बिलीफ में क्या होगा? डीप रूटेड, आई डिड इट, मैं था तो इतना हुआ, नहीं तो आज तक कितने 5 साल में देखो क्या काम हुआ है। मैं था तो ये सब हुआ। तो बिलीफ पे क्या है? डीप रूटेड बिलीफ पे क्या? आई एम डूअर, आई एम डूइंग। तो इगोइज्म जो है ना, इगोइज्म इज कनेक्टेड विथ इग्नोरेंस, अज्ञानता। अज्ञानता जब बोलूंगा तो आप समझेंगे कि अज्ञानता तो हमने ये शास्त्र नहीं पढ़े, हमें संस्कृत नहीं आती, हमें ये पता नहीं, वो पता नहीं, हमें धर्म के बारे में कुछ पता नहीं, तो हम अज्ञान है, ऐसा सोचें। क्योंकि आप पढ़े लिखे तो है, ऐसा तो इग्नोरेंट नहीं बोल सकते, इलिटरेट तो नहीं बोल सकते, पर पढ़े लिखे है तो आपको क्या लगेगा? मुझे शास्त्र की कुछ बातें पता है तो मैं अज्ञान हूं। भगवान ने क्या बताया? आप खुद जो है, अब बताए सोल, आप खुद जो है वो जानते नहीं, और जो नहीं है, विद दैट स्टॉन्च बिलीफ यू आर लिविंग योर लाइफ। मीन्स आप अपनी सही कुर्सी पे नहीं बैठे, किसी और की कुर्सी पे बैठ गए। इसको इगोइज्म बोलते हैं। अज्ञानता is ignorance. Self ignorance is egoism. आप है pure soul, but at present your belief is I am Hanu. So that is egoism. समझ में? और लोग बाहर क्या सोचते हैं कि कोई यहाँ कनाडा आया और बाद में ऐसा 2-4 साल में बहुत पैसा कमा लिया और थोड़ा टाइट होकर घूमता है, उनका जो पुराना सर्कल उससे बात भी नहीं करता, हम बोलेंगे बहुत बहुत अहंकारी है। और दैट इज द ग्रॉस इगोइज्म, उसकी वैल्यू नहीं है। मगर दिस इज द सटल इगोइज्म, एंड व्हेन यू रिनाउंस दिस सटल इगोइज्म, मीन्स व्हेन यू कॉन्कर दिस सटल इगोइज्म, तो फिर आपका काम हो गया, ऐसा हो। तो भगवान जी बोला अहंकार और ममता का त्याग करने का है, ये अहंकार का कि मैं हनु हूं, तो कि वो फ्रैक्चर हो जाए और आप जो प्योर सोल है वो आपकी अभी आपकी जो पक्की श्रद्धा में कि मैं हनु हूं, इतना ही पक्की श्रद्धा बैठ जाए कि नहीं मैं सोल हूं, तभी वो अहंकार गया, ऐसा बोल सकते। समझ में ऐसी बात है? आपको भी समझ में आ गया? माता जी आपको समझ में आया? मेरे हिंदी समझ में आती है ना, मेरे थोड़ी गुजराती मुंबई या हिंदी है, मैं आपके साथ बोल के सीख रहा हूँ। और पंजाबी मुझे आती नहीं है, पंजाब जाता हूँ साल में एक बार, मुझे आती नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूँ। छोटे छोटे गांव में जाता हूँ पंजाब में, तो एक बार मैं कहाँ से लुधियाना से उधर जा रहा था समाना, तो छोटे गांव में ऐसा छोटे रास्ते से जाने का था, तो बोर्ड पे सब पंजाबी लिखा है, कुछ समझ में नहीं आता, पूछना पड़ता है भैया रास्ता कौन सा। तो एक छोटे गांव में बाहर वो खाट डाल के वो क्या बोलते हैं आपका जो
मंजी। हाँ मंजी, हाँ मंजी डाल के ऐसे बुजुर्ग लोग बैठे थे। तो मैंने गाड़ी खड़ी हुई जाके पूछा कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ है? तो बोला आई आप बैठो बैठो बैठो। तो मतलब मुझे बैठना है, मुझे जाना है। अरे आप चाय पियो चाय पियो। तो मैं भी सोच में पड़ गया, मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं। मैं तो उनको पूछ रहा हूँ ये रास्ता कहाँ है? वो बोले पहले चाय तो पियो बाद में बताते। तो मैं भी सोच में पड़ गया, कितना बहुत अच्छा लगा। अभी मैं हिंदी में बता, वो समझते ही नहीं थे, पूरा पंजाबी समझते थे। फिर मैंने धीरे से बताया मुझे समाना जाना है। फिर बताया कि ये साइड जाओ, चलो अच्छा है। वो इतने प्रेम वाले लोग कि नहीं आप, मैं पूछा रास्ता का, आप बैठो तो कि मंजी में बैठो तो क्या? तो मैं सब बैठ के क्या करूँ, मुझे जाना है। अरे चाय तो पियो। तो घर में बूम भी बता चाय लेके आओगे। तो वो तो चाय लेके आ गए, वो बड़ा स्टील के ग्लास में। हाँ तो इतना तो मैं एक वीक में नहीं पीता हूँ। हम गुजराती लोग तो कटिंग टी पीते हैं, इतनी छोटी छोटी। जो गांव होते हैं ना छोटे छोटे, वहाँ पे ऐसे ही हाँ, ऐसा। प्यार मोहब्बत से रहते हैं। शहरों में फिर भी थोड़ा कम है, नहीं शहरों में तो सब, गांव में तो वैसे ही है ना। हर मैंने देखा अभी भी ऐसा है। अभी भी ऐसे ही। हम भी गुजरात के छोटे गांव में जाते हैं ना, तो वहाँ तो वहाँ भी ऐसा है। हाँ जी। तो अपना इंडिया है ना, छोटे गांव में बच के सही, रहा। हाँ जी, actually। शहरों में नहीं बहुत अच्छा लगता है। हाँ। वो तो चाय का कप ग्लास देख के मुझे बड़ा ग्लास, स्टील का बड़ा ग्लास। हाँ, और ठंड नहीं रहता, हाथ में गरम गरम पकड़ने का भी अच्छा लगता है। तो चाय नहीं पिया तो लगता है हाथ में पकड़ने के अच्छा लगेगा। ये लोग आप तो पुत्र है, उसको आप तो हम लोग है ना, हाँ, दादा मैं ये दादा भगवान जो बताया ना, तो हम लोग जब छोटे थे, when we were in school और कॉलेज, we met दादा भगवान। और ये बता, ये जो चित्र मोटो फोटो ये है ना, ये दादा भगवान, ऐसा उनका नाम था एम पटेल। मगर ये ज्ञान खोने के बाद भी तो जो दादा क्या बोला कि मैं तो एम पटेल हूँ। और दादा बोल हम किसको बोलते हैं कि एम पटेल को 1958 के उनके भीतर के राम जो खुले हुए प्रकट हुए, उनको दादा भगवान बोलते हैं। और वही दादा भगवान हम सबके भीतर भी है। तो दादा क्या बोलते थे कि एक कलयुग है और सूरत के स्टेशन पे भीतर के भगवान पूर्ण रूप से प्रकट हुए। मीन्स ये ज्ञान प्रकाश 360 डिग्री खुला हो गया। मगर ये कलयुग का बॉडी है ना, तो मुझे डाइजेस्ट कितना हुआ 356 डिग्री। तो बाकी के 4 डिग्री पूरी करने के लिए मैं भी मेरे भीतर जो दादा भगवान है, मीन्स एम पटेल भीतर है, वो दादा भगवान की भक्ति करता हूँ मेरी 4 डिग्री पूरी करने के लिए। तो ऐसे ये जो दादा भगवान, तो ये जो ज्ञानी पुरुष, तो हम लोग जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब मिले थे। तो उनको मिले तो क्या हुआ, हमें तो ऐसा, आपको धर्म में इतनी ये है, इतना आपका डेवलपमेंट है। हम तो जब दादा को मिले कुछ ऐसा समझ ही नहीं था। कॉलेज में पढ़ते, स्कूल में पढ़ते, धर्म के लिए कुछ इतना सोचा ही नहीं था। मगर दादाजी को मिले और दादाजी के पास से दृष्टि प्राप्त हुई तो इतना आनंद रहने लगा। तो हमारी भावना हो गई कि हमें जो सुख मिला है सबको बांटना चाहिए। तो कुछ कुदरत ऐसा हो गया कि हमारा पूरा जीवन ये दादा के जगत कल्याण के मिशन के लिए समर्पित हो गया। किया नहीं, हो गया। दादाजी ऐसे थे और घर से परमिशन भी मिल गई, तो ऐसा हो गया। तो हम लोग, मम्मा है हाँ मेरे माता जी, तो हम लोग सब जो है ना ऐसे देश वाले, उनको आप्त पुत्र बोलते हैं। दादा भगवान ज्ञानी पुरुष को शास्त्रों में आप्त पुरुष बोलते हैं। आप्त मीन्स ट्रस्टवर्दी। आप संसार व्यवहार में भी उन पे विश्वास कर सकते हैं और मुक्ति के लिए भी विश्वास कर सकते हैं। तो ऐसे पुरुष को आप्त पुरुष बोलते हैं। और हम लोग सब आप्त पुरुष से बात तैयार हुए तो हमें आप्त पुत्र बोलते हैं। तो वी आर ऑल, हम लोग सब ब्रह्मचारी है और ये बिजनेस जॉब वो खुद नहीं करते, पूरा ये मिशन के लिए एक जगह दूसरे घूमते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। आप मिले, आपसे बात कर लिया, फिर आगे जाएंगे, फिर कभी दूसरी बार मिलेंगे तो फिर बातें करेंगे, नहीं मिलेंगे तो जय सच्चिदानंद ऐसे। मगर आपको जितनी बात क्लिक हो गई, टाइम हो गया, नहीं
जय सच्चिदानंद नहीं, ये उनका मिशन है। और ये जो दादा भगवान ने ज्ञान सबको देते थे ना, ये भी विधि करते हैं। हाँ, ज्ञान विधि देते हैं। ये नहीं बोलेंगे, रखेंगे ज्ञान विधि देख कर करो। हाँ 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 आप तो एकदम आगे आगे चले। ये दादा भगवान का एक प्रयोग था जिसमें आपको आप खुद कौन है, आप जो सोल बता रहे हैं ना, उनकी एक पक्की अनुभूति हो जाती है, पक्की श्रद्धा बैठ जाती है। अभी आपकी जो श्रद्धा में कि मैं हनु हूँ, ऐसे मैं आत्मा हूँ, ऐसे ऐसी पक्की श्रद्धा, पक्की मीन्स कभी उसके ऊपर शंका खड़ी न हुए, ऐसी पक्की श्रद्धा खड़ी हो जाती है। तभी वो दृष्टि बदल के सकती है। शास्त्र में बोलते हैं कि दृष्टि अभी बहिर्मुखी है, मीन्स हमारी दृष्टि बाहर की ओर है, एक्सट्रोवर्ट। तो हमें बाहर जो सुख जो कुछ है वो अच्छा लगता है, उसमें सुख लगता है, उनको बोलते हैं दृष्टि बहिर्मुखी है। तो वही दृष्टि अब दादा भगवान को मिले तो उन्होंने क्या किया, कुछ किया नहीं, टर्न कर दिया 180 डिग्री। बाहर का कुछ बदल नहीं दिया, बाहर का सब एज इट इज रहा, और दृष्टि बदल गई। तो पहले जो बाहर सब जो सुख है ऐसा लगता था, उसकी जगह सुख भीतर ऐसा हो गया। इतना ही सिंपल है। आप भी भावना रख रहे कि ऐसा हो जाए, बराबर। आप बहुत से, आपको जरूरत नहीं है, मगर भावना रखना, बराबर। ये तो हाँ, ज्ञान विधि करा के अभी आए हैं ना, तो कभी ऐसा रखेंगे, जब प्रयोग रखेंगे भी यार, तो आपको मैं बताऊंगा। बुधवार के गुरुवार इंग्लिश, गुरुवार हिंदी में। मोस्ट प्रोबेबली देयर आर चांसेस ऑन थर्सडे, कमिंग थर्सडे। 2-3 आज क्या हुआ, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आप फ्री है तो आ जाओ। 5 बजे मंडे हुआ, आप फ्री है तो आ जाए। हाँ बस आप अभी सब प्लानिंग कर लेगा, मगर थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा आप आएंगे तो। हाँ, क्योंकि ये क्या है, डॉक्टर ऑपरेशन करते पहले सब बताते हैं, सिग्नेचर करा दो पेपर। तो मुझे भी आपको बताना पड़ेगा। ये आपको एक बार खुद कौन उनका बांध होता है ना, बाद में संसार में रहते हुए आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की, ऑफिस से सब निभाएगी, उसमें तो अच्छी तरह से निभाएंगे, पहले से अच्छी तरह से। मगर इतना एक प्रॉब्लम रहता है कि कुछ भी होगा ना, आपको टेंशन नहीं होगा, हाँ इफेक्ट नहीं करेगा, आप निर्लभ रह पाएंगे। जैसे कुछ भी संजोग आ गया ना, हमें भीतर टेंशन खड़ा हो जाता है, परेशान हो जाती है, वो सब बंद हो जाएगा। तो जब सोच लेना, क्योंकि इससे फिर बाद आप बोलेंगे कि अभी ये तो क्या हो गया, मुझे वरी से नहीं होती है, तो मैं क्या करूँ, तो फिर वापस नहीं मिलेगी। मेरे को टेंशन क्यों जाएगी, मेरे घर वालों को ज़्यादा टेंशन रहेगी। सही बात है। मेरे घर वालों को परेशानी हो जाएगी, वो बोलेंगे ये तो बात पे रोने वाली थी, ये क्या हो गया। हाँ नहीं, बराबर है, सही बात है। आप मैं बता रहा हूँ कि ये पहले छोटी छोटी चीज में, छोटी छोटी बात में इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, आप में पानी आ जाता है, और फिर धीरे धीरे नॉर्मलिटी में आ जाते हैं। तो सोच लेना, हाँ आप सोच के आना, फिर बाद में मुझे क्लेम मत करना कि प्रॉब्लम हो गया। फिर हम क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नो क्लेम कर देंगे। ये अपना जो है ना, नॉर्मलिटी में आ जाते हैं। एट प्रेजेंट यू आर एबनॉर्मल, आइदर एबव नॉर्मल और बिलो नॉर्मल, एंड नॉर्मलिटी इज द एसेंस ऑफ लाइफ। हमें नॉर्मल तो होना पड़ेगा ना। और दूसरी बात बताओ, 100% नॉर्मल वो भगवान है, 100% नॉर्मल। किशन भगवान थे ने,
इतना युद्ध हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उन्होंने सब प्रयत्न किया, सब कुछ किया, और फिर युद्ध भी हुआ, सब कुछ हुआ, फिर वो तो नॉर्मल ही थे, वो इमोशनल हुए थे, सेंसिटिव हुए। दुर्योधन ने उनकी बात नहीं सुनी तो भगवान ने ऐसा सोचा कि मेरी बात सुनता नहीं है, क्या समझता है, समझाने का पूरा प्रयत्न किया, कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए सब प्रयत्न किए कि भाई आपको पूरा राज्य दे देना चाहिए, तो नहीं मैं नहीं दूंगा, तो क्या आधा दे दो, आधा भी नहीं दूंगा, तो ठीक है आपको जो पसंद है 5 गांव दे दो, तो कि मैं एक तनिक से भी जमीन देने वाला नहीं हूं। भगवान के सामने ऐसी बात कर रहा है, आप तो बॉस है, ये आपके सबॉर्डिनेट पे कभी ऐसी बात करेंगे तो क्या होगा, ये तो बहुत अच्छी है, मैं ऐसा बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ कि आपका ऐसा कोई सबॉर्डिनेट है और आपकी बात नहीं सुनता है तो आपको तो क्या हो जाएगा। हाँ, और ये तो भगवान जैसा भगवान, और भगवान के सामने दुर्योधन कौन से खेत की मूली, फिर भी देखो भगवान नॉर्मल रहे थे, भगवान सेंसिटिव नहीं हुए, भगवान एक्साइट नहीं हुए, भगवान ने क्रोध किया था, कुछ भी नहीं, नॉर्मल रहे थे। तो नॉर्मलिटी इज द एसेंस ऑफ लाइफ। तो आपको नॉर्मल होना है तो फिर वो थर्सडे का पक्का कर लेना, बराबर। कितना बजे छूटता है आपकी जॉब को भी पूरी होती है? वैसे तो सब 5 बजे छोड़ देते हैं, बट मैं बैठती हूँ थोड़ा लेट में। हाँ हाँ, अब ओवर टाइम करते हैं। आपका खुद का है, खुद का बिजनेस है? खुद का है। खुद का ऐसे नहीं हाँ। तो खुद का है तो 4 बजे भी बंद हो सकते हैं। थर्सडे का टाइम है 6 बजे का। पाकू जाए ना फ्राइडे ऐसा गुरुवार पाकू जाए तो मैं उनको बोलूँ। हाँ, सबको बताओ थर्सडे को हिंदी में ज्ञान विधि रखा है, ज्यादा लोग नहीं, आपके से 8-10 लोग ही है, बट इट विल टेक टोटली जैसे ऑपरेशन है, ऑपरेशन 1 घंटे का होता है, आगे पीछे आधा घंटा चला जाता है, ऐसे इट विल टेक अबाउट 3 आवर्स। तो था फ्री हो क्या है? बीच में आ सकते हैं या नहीं, बीच में नहीं। एक बार ऑपरेशन शुरू होने से पहले ऑपरेशन थिएटर में आ जाना पड़ता है। प्री ऑपरेटिव, पोस्ट मेरी ऑपरेटिव। एक किसी के घर पे जाना है, कोई फंक्शन है वहाँ पे, उनका भी 6 बजे का टाइम है। नहीं तो फिर आप एक काम कर, उधर जाना या तो यहाँ आना, 2 में से एक रखना है। हाँ जी। जो क्या है फंक्शन है, आपको ना नहीं बोल सकते, उधर जाके आना। और उनके बेबी शावर है। हमने बराबर समझ गया, पहले जाके तो फिर आप उधर जाके आना। कोई दूसरी बात, इनको आने दूं, आप तो फ्री है, आना है ना। मुझे तो 4 बजे छुट्टी करना। ऐसा कोई फोर्स नहीं है, आना है तो आ जाना, फिर आपका अनुभव उनको बताना। तो कभी कोई दूसरी बार आए, ऐसा कुछ संजोग है तो वो बैलेंस शीट आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ तो नहीं होता है। क्या है तो संजोग सब होना चाहिए। एक गीता है तो गीता का संजोग कहाँ बना? युद्ध भूमि में हुआ, आश्रम में नहीं हुआ, घर पे नहीं हुआ, महल में नहीं हुआ, युद्ध भूमि में संजोग। तो सब संजोग मिलना चाहिए, तो कोई बात नहीं, बराबर। आपको बेबी शावर तो क्या है कि व्यवहार है, नहीं जाना पड़ेगा, और टाइम भी सेम है। और उन्होंने रखा भी स्पेशली थर्सडे का, कोई कुछ पंडित जी से निकलवा के कि इट्स अ वेरी गुड डे। हाँ हाँ, नहीं बराबर, तो कोई बात नहीं। आपको नहीं जाने के बेबी शावर? आपके पहचान वाले नहीं है, आप ऑफिस वाले नहीं है तो नहीं, ऑफिसर देखना, आपको कन्वीनियंट है तो आ जाना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, बट इट्स समथिंग यूनिक, समथिंग एवरेज। अभी पूछो, दूसरे प्रश्न करते जाओ। ये प्रश्न पूछने की जगह है। जैसा बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट देते हैं वैसे यहाँ भी व्यवहार में आगे पीछे मिलकर आ सकते हैं। ना ये मेरे साथी क्या बोलते हैं कि बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें कितना एडजस्टमेंट ले लेते हैं, ऐसे व्यवहार में भी कर सकते हैं।
वो आगे पीछे जाके मिल सकते हैं, हाँ जी, एक इमरजेंसी आ गई करके। या मैं ट्राई करूँ। मीरा बोल। हाँ આપણે જે આત્મા સુખની વાત કરીએ છીએ એટલે ડેફિનેશન રિયલાઇઝેશન છે હવે, પણ જે સુખની વાત કરીએ એ ખ્યાલ નથી આવતો. वो हिंदी में जाओ वो चल सक ઇંગ્લિશ હિન્દી She is asking कि we are talking about bliss of soul, permanent happiness. देखिए संसार के सुख का एंजॉय करते हैं? नहीं करते। तो ये आत्मा का सुख टाइम हो गया? आप तो गया સાતમા हाँ ना कई बोल ना साउथ मैंने ख्याल हो ना वो प्रसाद है मेरा टाइम हो गया तो उसके हिसाब से बंद करना पड़ता है जैसे सिग्नल और यहाँ सब टाइम से चलता है तो बराबर है। तो परमानेंट हैप्पीनेस, आत्मा का सुख, all this relative happiness, materialistic happiness, relative means materialistic happiness. We have belief that money will make me happy, or big house, big car will make me happy. We have that belief. But all this materialistic happiness is belief-based happiness. If you have belief of happiness in that material, in that thing, then you will feel happy. Otherwise, you will not feel happy. ख्याल में? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आई एम प्योर वेजिटेरियन, बराबर है? मैं किसी कहीं घूमने के लिए गया और भूख लगी है तो मेरे साथ में जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो हम दोनों खाना ढूंढते कुछ मिल गया और जाते बोलते यार उससे नॉन वेज ही मिलेगा, तो नॉन वेज कितनी भी अच्छी डिश होगी उनके लिए बहुत यमी होगा, बट फॉर मी आई विल नॉट इवन टेस्ट इट। समझा? तो ये खाना जो आपको हैप्पीनेस देता है, ये मटेरियल जो आपको सुख देता है, तो आपको भी सुख देगा, मुझे भी सुख देगा। वैसा तो है नहीं, तो है क्या? तो वंस बिलीव इन दैट थिंग दैट दिस विल मेक मी हैप्पी, उनकी खुद की बिलीफ उनको हैप्पी करती है और खुद की बिलीफ उनको अनहैप्पी करती है। तो materialistic happiness is belief based happiness, and आत्मा का जो सुख है it's a really existing happiness and it's permanent, and this belief based happiness is temporary. ख्याल है? मानो आपको रसगुल्ला पसंद है तो आपको रसगुल्ला देंगे तो आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? खाएंगे? और बहुत अच्छा है तो एक की जगह दो भी खा लेंगे या दो की जगह तीन भी खा लेंगे, बराबर? मगर आपकी कैपेसिटी 3 की है, 3 आपने खा लिया और फिर मैं आऊँगा दूसरे 2 आपको खिलाऊंगा तो आपको हैप्पीनेस आएगी? कम होती है। क्या ना ये टेम्पररी, इससे समझ में आता है कि फर्स्ट रसगुल्ला है तो आपको सुख आएगा, मगर आपको 6 खिला दो तो वही रसगुल्ला आपको दुख देगा। नहीं खा ही नहीं पाएंगे, खाते समय दुख हो, वो पेट खराब हो तो बात की बात है, हाँ वो तो बात की बात है, मगर अंदर जाएगा नहीं। तो पहले जो सुख देता है वो सुख ही नहीं देता है, तो एक टेम्पररी हैप्पीनेस। और परमानेंट है तो कभी भी रसगुल्ला देंगे, 1 देंगे 100 देंगे फिर भी सुख आएगा। क्या है? तो आत्मा का सुख ऐसा है, परमानेंट।
परमानेंट मीन्स एक बार चख लिया ने फिर जाता नहीं। और ये तो रसगुल्ला खाया तो अभी हो गया, चलो अभी बहुत हो गया है, फिर 2 दिन के बाद फिर हो गया, अरे वो रसगुल्ला बहुत अच्छा था, या तो ऐसा निकलते हैं तो फिर सोचेगा या ऐसे में अच्छा था। वो कौन सा था रोल वाला? स्कूप एंड रोल। हाँ वो फ्लेम फ्लेम क्या आइस फ्लेम या वो खिलाया था मुझे तो अच्छा लगा था मुझे। समय पर बचपन में जो गुलाब जामुन खाते और जब उम्र होते तो भी वो क्या इट्स ऑल टेम्पररी, मतलब विद टाइम विद एज एवरीथिंग इज चेंजिंग। बचपन में बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर बोलेंगे आपको डायबिटीज आपको खाने का ही नहीं है, तो क्या होगा? सामने होगा फिर भी नहीं खाएगा, सामने होगा फिर भी नहीं खाएगा। No, my question is like आत्मा के सुख की बात करते हैं तो like I feel like I step back and I can see, but I'm not feeling like oh happiness. हाँ नहीं बराबर वो क्या है आपके, वो तो उनका खुद का प्रश्न है। तो क्या है कि आपके लिए जो है ना देयर आर 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि संसार के दुख आपको स्पर्श नहीं करते, ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। फिर सेकंड स्टेप में आत्मा का सुख जो है ना, उनको क्या बोलते हैं? स्वाभाविक सुख का स्वभाव। ये आत्मा का जो सुख है ना, सुख वो आत्मा का स्वभाव है, इनहेरेंट नेचर। तो ये स्वाभाविक सुख जो है परमानेंट है, उनका सद्भाव मीन्स अभी आपको संसार के दुखों का अभाव हो गया, संसार के दुखों का अभाव हो गया, वो फर्स्ट स्टेप आपको हो गया, तो आपको संसार के दुख स्पर्श ही नहीं करेंगे। अभी जैसे जैसे भरा हुआ माल खत्म होता जाएगा वैसे वैसे आत्मा का जो स्वाभाविक सुख है परमानेंट हैप्पीनेस, वो धीरे धीरे उनका सद्भाव मीन्स वो खुला होता जाएगा। मगर ये स्टेप हो गया कि संसार के दुखों का अभाव हो गया, दुख होंगे बट इट विल नॉट अफेक्ट यू, वो आपको अनुभव फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में आज्ञा में रहने के बाद ये भरा हुआ माल जिससे खाली होता है ना, तो फिर वो आत्मा का स्वाभाविक सुख उनका सद्भाव वो खुला होता जाता है। मगर ये दुख स्पर्श नहीं करता है, वो तो बड़ा सुख है। और ये तो क्या है, आत्मा का जो सुख है ना, वो सिद्ध जगत में जो आत्मा है उनका जो इनहेरेंट नेचर, जो परमानेंट हैप्पीनेस ब्लिस जो है ना, वो कैसा है कि मोक्ष में जो आत्माएं है उनका 1 सेकंड का सुख भी या पृथ्वी पर लेके आए ना, ऐसा होगा नहीं, वो ऐसा लेके आए तो 1 साल तक पृथ्वी के सारे जीवों को सुख सुख रहेगा, इतना इतना जबरदस्त होता है। और दूसरा क्या, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी सर्कमस्टेंसेस। ये मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस वो सब इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन, ऑन द सर्कमस्टेंसेस। आपको भूख लगी और खाना देंगे ना तो अच्छा लगेगा ना। आपको भूख लगी, रसगुल्ला पसंद है, रसगुल्ला मिलेगा तो विल बी वेरी हैप्पी। और आपको भूख ही नहीं लगी है, आपको रसगुल्ला देंगे तो आपको पसंद एक आध खा लेंगे, जगह नहीं तो ऐसा ऐसा हिला हिला के भी एक आध डाल देंगे, मगर ज्यादा नहीं खा पाते। और आप बीमार है और आपको रसगुल्ला देंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना संजोग के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड परमानेंट हैप्पीनेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, इट्स आवर इनहेरेंट नेचर। मगर ये आत्मा का स्वभाव खुला कब होता है, तो जितना जितना 5 आज्ञा में रहेंगे ना, स्वभाव और गुण 2 शब्द है। आपको थोड़ी बात समझ में नहीं आएगी, मैं कर लेता हूँ, उन्होंने मुझे पूछा तो 2 शब्द है, गुण और स्वभाव। तो आत्मा के गुण कैसे? अनंत गुण है।
जैसे मैं अविनाशी हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं अव्याभास स्वरूप हूँ, मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ, ऐसे अनंत गुण है। अभी एक एक गुण पूर्ण रूप से खुला हुआ, ऐसे सारे गुण पूर्ण रूप से खुले होते हैं, तभी उनको स्वभाव बोलते हैं। और इंडिविजुअल है तभी उनको गुण बोलते हैं। समझ में? कि मानो कि मैं अव्याभास स्वरूप हूँ, वो इंडिविजुअल गुण हुआ, और सारे गुण खुले हुए तभी बोलते हैं स्वभाव खुला हुआ। तो अभी ये स्वभाव आपका खुला नहीं हुआ है, मगर आपके ज्ञान पे आवरण करने वाले और दर्शन पर आवरण करने वाले जो कवरिंग थे वो सब निकल गए। तो मेन आपका निकल गया, बाकी का जो है तो दादा बन क्या बोलते थे कि पानी और स्टीम रूप के में जो कर्म थे वो सब निकल गए। अभी बर्फ के रूप में जो है वो बचे हैं, वो अभी आज्ञा में रहकर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और जैसे वो खत्म होता है बाद में वो स्वाभाविक सुख खुला होता है। तो अभी तो आपको समझ में आ जाता है कि ऐसा सुख है, मगर अभी वो सुख खुला नहीं हुआ, उनका थोड़ा टेस्ट हो गया। मगर उसके पहले का स्टेप कि आपको संसार के दुखों का अभाव हो गया। संसार में रहते हो, संसार के दुखों का अभाव होना कितनी बड़ी बात है। और यही ज्ञान आपको द्वापर में मिलता था ना, तो खुला हो जाता है। मैं वहाँ पे थी पर पता नहीं, याद नहीं है ना। हाँ, उसमें भूख नहीं लगी, उसमें भूख नहीं लगी, पता भी नहीं था ना। हाँ पता नहीं, याद नहीं रहता। नहीं बराबर, वही अच्छा नहीं, याद नहीं रहता वो अच्छा है। वरना तो सारे पागल घूमते। हाँ ये जो तो बात की ना, वो ज्ञान विधि का प्रयोग होने के बाद पता चलता है। देखो अभी अब आप तीनों आए हैं ना, फर्स्ट टाइम आए ना, अभी आई डोंट नो हम कब मिलेंगे। आपको तो व्यवहार में जाने का बेबी सब आप नहीं आ पाएंगे, बराबर, ऐसा लगता है। आप आ पाए तो बहुत अच्छी बात है, कुछ एडजस्टमेंट कर सकते आ सकते तो अच्छी बात है। आपका भी मानो आप आ गए तो अच्छी बात है, पर बाई चांस नहीं आ पाए तो आप आज आप हम मिले हैं तो आपको थोड़ा एक असाइनमेंट दे दूँ हैप्पी होने के लिए, सुखी होने के लिए। आप तो ऐसा सुखी है, मगर ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप दुखी है, किसी को बोल सकते दुखी है नहीं बोलो, कितना आनंदी है आप सब, तो सुखी है। हाँ हाँ, आपको टुमारो यू आर फ्री, बट इट विल बी इन इंग्लिश। मैं क्या बताऊं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट इफ इट इज हिंदी इट इज बेटर, बिकॉज our language, Gujarati and Hindi, is very rich language. For different phases, there are different words. But for English, for in Hindi, for 2-3 phases, only one word. So it is not that much precise. But you can come. ऐसा है तो आ सकते हैं, कृष्णा को पूछ लेना कि कृष्णा की मम्मी है, उनको सब पूछते हैं, वो बता देंगे। जानते हैं उनको? आप पूरी करो ना बात में। हाँ हाँ हाँ, वो सुख की बात है। ये सब आ गए बच्चे, तो मुझे लगा कि अभी पूरा 2 मिनट चलेगा आपको। हमारे क्वेश्चन है। हाँ अभी तक कहाँ चला गया था? अरे ना, तो हिंदी नहीं ऑर्डर થોડી આવડતા છે. મારી પાસે 2 છે પછી આગે થોડી આવડતા છે. हिंदी they don't know हिंदी, they know गुजराती and इंग्लिश, तो बोलता है कि थोड़ी हिंदी आवड़ता है। तो भाई आपको बता दूं
इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो दादा भगवान ने ये मास्टर के दिया था संसार में सुखी होने के लिए, वो आपको बता रहा हूँ. इट्स साइंटिफिक. क्या है कि इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, वॉट एवर टाइम यू वेक अप, फर्स्ट थिंग यू डू द गॉड यू बिलीव, जो भगवान में आप मानते हैं ना, उनके पास इतनी शक्ति मांग लेना. मैं एक बार बुलाता हूँ, आप जोर से रिपीट करना. 5 बार शक्ति मांगना भगवान के पास, और भीतर निश्चय करना, यू रिजॉल्व विद इन दैट, वो जो मैं बोलता हूँ वो निश्चय करना. एक बार बुलाता हूँ. प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से, इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो. हनु इट्स अ सिंपल थिंग, वेरी सिंपल. इतना मांग सकते थे. मैंने आपको सिर्फ भगवान के पास शक्ति मांगने को बोला है, बराबर. और भीतर निश्चय करना कि मुझे सारे दिन में किसी को दुख देना नहीं. इतना सिंपल कर सकते हैं. जो भी भगवान को मानते हैं, भगवान को अंदर से झगड़ा नहीं है. झगड़ा मनुष्य को है, भगवान को नहीं है. फिर रात को सो जाते हैं कि ज्यादा काम हो तो भूल जाते हैं सोने का. आपका खुद का बिजनेस है तो फिर काम पूरा करना पड़ता है. सो जाते हैं ना. तो सोने से पहले क्या करने का, सोने से पहले जा देख लेना कि पूरे दिन में आपने ये शक्ति मांग ली, निश्चय किया, फिर भी जाने अनजाने किसी दुख हो जाता है ना. तो दुख हो गया तो दिल से उनके भीतर जो भगवान है, उनके भीतर जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा भगवान है, उनके दिल से माफी मांग लेना. कर सकते हैं इतना. तो क्या होगा, कैसा है, इट्स अ सिंपल थिंग बट साइंटिफिक. सिंपल और साइंटिफिक कैसे है कि यू नो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? हाँ, वो स्कूल तब कब से छूट गई. भाई भी उम्र होगी. क्या सुना न्यूटन्स थर्ड लॉ? यू नो, actions and reactions are equal and in opposite direction. बराबर है. जैसे मैं बॉल लेकर दीवार में मारूंगा तो इतना ही फोर्स से वापस आएगा. तो सारे दिन में आपकी एक्शन क्या है इन मदर नेचर, कि मुझे किसी को दुख देना नहीं है. तो रिएक्शन क्या है मदर नेचर की ओर से, आपको कोई आपको दुख नहीं देगा. And when nobody will hurt you, what will even with you? Happiness. मगर ये संसार की हैप्पीनेस, बट क्या ऐसी हैप्पीनेस. तो इसकी चाबी अभी देता हूँ. और परमानेंट हैप्पीनेस आई है तो ध्यान में रखना, कभी ऐसा संयोग है तो बैठ जाए. दोनों आपको उधर. हाँ बोलो क्या कहा. तो रात को कैसे माफी मांगना वो भी आपको बुला देता हूँ. ये आप रिश्ता से ले लेना व्हाट्सएप पे, क्योंकि आपको याद तो रहेगा. तो याद नहीं रहा तो ले लेना, बस शुरू कर देना. मैं बुलाता हूँ, रिपीट करना. हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव मात्र में, आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है. वैसे ही मुझ में भी विराजमान है. वैसे ही मुझ में भी विराजमान है. आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है. वही मेरा स्वरूप है. मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है. शुद्ध आत्मा है. हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. अज्ञानता की वजह से मैंने जो दोष किए हैं, उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ.
इनके लिए हृदय से पश्चाताप करता हूँ। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और फिर से ऐसे दोष कभी भी न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करो जिससे हम में से भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो जाए। हम आपके साथ अभेद रूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। समझ में ऐसी बात है कि अज्ञानता की वजह से मैंने जो दोष किए हैं, तो सारे दिन में जो भी हमसे किसी को भले भावना की, हमने शक्ति मांगी, फिर भी किसी को दुख हो जाएगा। तो जाने अनजाने में किसी को दुख हो गया, 2, 4, 5 को दुख हो, तो उधर मन में उनके भीतर जो शुद्धात्मा भगवान, उनके भीतर के शुद्धात्मा भगवान की माफी मांग लेने, इतना कर लेने का। अब मैं उनको भेज दूंगा, ये कृष्णा को बताता हूँ, नाम बोलिए, कृष्णा को भेज दूंगा, फिर कृष्णा आपको फॉरवर्ड कर देगी। वो नहीं करे तो आप उनसे मांग लेना, मगर मैं दूसरा मेरे ऐसा मत बोलना कि कृष्णा ने मुझे भेजा नहीं था। हाँ बराबर। और आना है तो आ जाना, ट्यूसडे का इंग्लिश में भी। हाँ, आपको ये ज्ञान विधि का प्रोग्राम जो इंग्लिश में है ना, उसमें आना है तो आ सकते हैं, नो, क्योंकि आपका हिंदी का संजोग नहीं है। मगर मैं तो प्रीफर करूँ, हिंदी में अच्छा है, मगर हिंदी का आपका संजोग नहीं ना, आपको बेबी शॉवर में जाना है तो आप तो एडजस्टमेंट लेंगे। ये तो आज तक आप हनु के लिए जिए ना, उनके लिए जीना तो पड़ेगा ना। ये तो ये मिलने के बाद फिर अपना खुद के लिए जीने का शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, इफ पॉसिबल इंग्लिश में भी आ जाना। चलो तो कीर्तन प्रति बोलेंगे। हाँ, कीर्तन प्रति कर सुन। हाँ हाँ, मैं इनको समझा दूँ ना। अभी ये क्या है, हम एक कीर्तन करते हैं, वो क्या बोलेंगे, गुजराती में बोलेंगे, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। तो मैं जो बताएंगे, जो दिखाई देते वो एम पटेल, और उनके भीतर जो भगवान प्रकट हुए दादा भगवान, तो दादा बोलते थे कि मेरी भी चाड़ी कम हुई तो मैं भी मेरे भीतर के भगवान की भक्ति करता हूँ। तो आपके भीतर भी दादा भगवान तो है, तो आपको कैसे बोलने का कि मैं ऋतु मेरे भीतर रहे हुए भगवान की भक्ति कर रही हूँ, ऐसे अवेयरनेस के साथ आपको ये बोलने का है, दादा भगवान ना असीम जय जयकार। ये बच्चे बुलाएंगे, हम रिपीट करेंगे, चलेगा? बच्चे बुलाएंगे चलेगा? हाँ बोलो, दादा भगवान ना असीम जय। भगवान